Good evening to all of you. Today I am going to start your new topic. Although इसको मैंने क्लास में कर लिया हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, तो मैंने सोचा कि एक इस पर अपना एक नया वीडियो बना करके इसको डाल देता हूँ. सो न्यू टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस. रेजिडेंशियल स्टेटस. Residential status is given under section 6 of IT Act 1961. IT Act 1961. ठीक है. सो रेजिडेंशियल स्टेटस, हम किन किन लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे. इसमें हम पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल का. रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. सेकेंड वी विल डू residential status of Hindu undivided family which is given under section 6 subsection 2. इसके बाद हम अपना फर्म्स का करेंगे, फिर और उसके बाद हम करेंगे कंपनी का. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हम चेक करेंगे कि इंडिविजुअल जो है how the residential status of an individual is determined in Income Tax Act. So it is given under section 6 subsection 1. So there are two basic conditions which are given under section 6 subsection 1. An individual has to satisfy either of those two conditions. And what are those two conditions? So first is an SSC should be physically present in India for at least 182 days in the relevant previous year. This is your first basic condition. Or second is an SSC should be physically present in India for at least 60 days in the relevant previous year and 365 days out of 4 years immediately preceding the previous year, relevant previous year. इसका क्या मतलब है immediately preceding the relevant previous year? इसका क्या मतलब है? Suppose that we are talking about assessment year 2020-2021. We are talking about assessment year 2021. So for this assessment year, previous year will be 2019 and 20. So if we want to determine the residential status of an SSC for the assessment year 2021, then we have to see the physical presence of an SSC in the relevant previous year. So what will be your relevant previous year? So relevant previous year is 2019 and 20. Okay. So now in relevant previous year, you have to see that an SSC should be physically present in India for at least 182 days. This is important, that 182 days in the relevant previous year. It means that in the previous year 1920, the SSC should be physically present in India for at least 182 days. ठीक है, तो if the SSC is physically present in India for at least 182 days in the relevant previous year, then that SSC is resident in India. Now question arises that suppose that the SSC is not physically present in India for at least 182 days. Suppose that something less, 180 days, 181 days or 90 days, whatever that is. So you have to see another alternate conditions. Alternate condition is here
If the SSC is not fulfilling this condition of 182 days, then we have to see an alternate condition for those SSC. What is that alternate condition? An SSC should be physically present in India for at least 60 days. 60 days in a relevant previous year and 365 days out of 4 years immediately preceding the relevant previous year. It means that suppose that this condition is not fulfilled, then we have to see an alternate condition which is given here, that the SSC should be physically present in India for at least 60 days. For at least 60 days in a relevant previous year. It means that for the assessment year 2021, relevant previous year is 1920. So in 1920, he should be physically present in India for at least 60 days and 365 days out of 4 years. Out of 4 years immediately preceding the relevant previous year. It means that 4 years immediately preceding the previous year. So previous year is 1920. इससे पहले पहले के 4 साल कौन कौन से 4 साल होंगे? 2018-19, 2017-18, 2016-17 and 2015-16. So out of these 4 years, the sum total of days the SSC should be physically present in India is 365 days. So it means that if SSC is not fulfilling the first condition of 182 days, so it means that second alternate condition should be fulfilled by that SSC. So second alternate condition is the SSC should be physically present in India for at least 60 days in the relevant previous year and 365 days out of 4 years. 365 days out of 4 years immediately preceding the previous year. Previous year से immediately preceding ये जो 4 साल होंगे, इन चारों सालों के दिन का जो आना जाना मिला करके इंडिया में प्रेजेंस का है, that should be 365 days. तो अगर ये कंडीशन फुलफिल, either of two conditions are fulfilled, either of two conditions are fulfilled, if either of two conditions are fulfilled, in that case the SSC is resident in India. If neither conditions are fulfilled, in that case the SSC is non-resident in India. The SSC is non-resident in India. So in the case of individual, the SSC is either resident after fulfilling either of these two conditions which have been discussed earlier, or it is non-resident, or he is non-resident. If he is non-resident, then no question arises further. If he is resident, then further he will be either ordinary resident OR or not ordinary resident NOR. So for OR and NOR, we have to further check the additional conditions. Those were basic conditions, and these are additional conditions which are given under section 6 subsection 6. So what are those additional conditions I am telling you? So first additional condition is the SSC should be resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. So the SSC should be physically present in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year. And next condition is the SSC should be physically present in India for at least 730 days out of 7 years
immediately preceding the relevant previous year. यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे कह रहा था SSC should be resident in India. What do you mean by resident in India? The SSC will be resident in India if he satisfies either conditions which are given under section 6 subsection 1. जो कि हमने पढ़ा था कि either resident होगा या नॉन रेजिडेंट होगा. तो रेजिडेंट कब होगा? जब वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की जो बेसिक कंडीशंस हैं, टू कंडीशंस जो बेसिक कंडीशंस हमें दी हैं, उन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही विल बी रेजिडेंट इन इंडिया. तो इट मीन्स दैट अगर मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो है 1920 है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट असेसमेंट ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर विल बी 1920 एंड प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 ईयर्स, तो कौन कौन से 10 ईयर्स होंगे? वो 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 10-11 and 9-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So immediately preceding previous year जो 10 years हैं, so he should be resident in India out of any 2 years. हो सकता है कि वो 18-19 में और 10-11 में 2 साल resident in India रहा हो, means he is fulfilling the conditions which are given under section 6 subsection 1. So out of 10 years he should be resident in India in any 2 years. कोई भी 2 साल. That those 2 years should not be in continuation. ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों कंटिन्यूटी में हो, या हो सकता है वो 18-19 में और 9-10 में रहा हो रेजिडेंट इन इंडिया, हो सकता है वो 17-18 और 12-13 में रेजिडेंट इन इंडिया रहा हो. सो इट मीन्स दैट आउट ऑफ 10 years immediately preceding the previous year he should be resident in India in any 2 years. And यहाँ पे I have written and का मतलब क्या है? Those conditions should be fulfilled simultaneously. दूसरी कंडीशन क्या है? The SSC should be physically present in India for at least 730 days out of 7 years immediately preceding the previous year. So it means that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of 7 years immediately preceding the previous year, the sum total of days should be 730 days. 730 days. If these two conditions are fulfilled, these two conditions, not either, वहां पे मैंने और लिखा था, यहां पर मैंने and लिखा है. and का मतलब क्या है कि those two conditions should be fulfilled simultaneously. So it means that the SSC should be resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and the SSC should be physically present in India for at least 730 days out of 7 years immediately preceding the previous year. So it means that कि दोनों conditions अगर fulfill हो रही हैं all along with conditions which are given under section 6 subsection 1, क्योंकि पहले तो हमको वही condition check करनी है. वो condition fulfill होने के बाद अगर resident है, non resident है, तो वही leave कर देंगे because he is non resident. क्वेश्चन को फर्दर आगे नहीं बढ़ाना है. लेकिन अगर रेजिडेंट है तो फर्दर वी हैव टू चेक वेदर ही इज ओआर और एनओआर. सो फर्दर वी हैव टू चेक इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली देन ही इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एंड इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है या दोनों कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, देन दैट एसएससी इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो either conditions which are given under section 6 subsection 1 and both the conditions which are given under section 6 subsection 6, then that person, that SSC is ordinary resident, otherwise SSC is not ordinary resident. And if he is not fulfilling the conditions, either conditions which are given under section 6 subsection 1, then that SSC is non-resident. फिर उसके आगे हमारा कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि हम उसको फर्दर चेक करें कि OR है कि NOR है. ठीक है, तो आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं एक्सेप्शंस पर. एक्सेप्शंस क्या हैं? अच्छा, कुछ नोट्स लिख रहे हैं हम. नोट्स ये इंपॉर्टेंट है. नोट्स में क्या है? सबसे पहले जो हम काउंटिंग ऑफ डेज करते हैं, जो हमने कहा कि 182 डेज, 60 डेज, 365 डेज, 730 डेज, वॉट एवर दोज डेज आर. सो काउंटिंग ऑफ डेज need not to be continuous. जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस ही हो, उसमें ब्रेक भी हो सकता है. दूसरा है डेट ऑफ अराइवल
and date of departure should also be included. इसका मतलब क्या है कि डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एंड ये जो हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, सो इंडिया मीन्स इंडियन टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 12 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं कि इंडियन टेरिटरी होता है, उसको हम टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं। तो ये हमारे इंडिया में इंक्लूड होता है। अगर यहाँ तक अगर हमारा कोई शिप है या कोई एसएससी है तो उसको हम फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया ही मानकर चलेंगे। क्लियर है? चलो अब हम आते हैं एक्सेप्शंस में क्या है। मैंने कहा कि द एसएससी शुड ईदर सेटिस्फाई द कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। वहां पर दो कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया होगा। लेकिन इन सर्टेन केसेस कुछ टाइप ऑफ एसएससी ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल करना मैंडेटरी है। उनके लिए 60 डेज और 365 डेज वाली कंडीशंस वैलिड नहीं है। तो कौन कौन से वो एसएससी हैं? पहला है crew member of Indian ship। दूसरा है person who leaves India for employment purpose, मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहा है इंडिया के बाहर। एम्प्लॉयमेंट पर्पज, या तो कोई प्रोजेक्ट है उसका बाहर, इंडिया के बाहर किसी कंपनी में जॉब करता है, इंडियन कंपनी में, उसका कोई प्रोजेक्ट उसको मिला है जो कि वो उसको बाहर करना है फॉरेन कंट्री में, 2 महीना 4 महीना साल भर के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 182 डेज वाली कंडीशन ही देखेंगे। या हो सकता है और भी उसका 4 साल 5 साल का एम्प्लॉयमेंट हो, बट दोज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर सर्टिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सर्टिफाई कर रखा है, देन ओनली उसका अप्रूवल मिल गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तभी ये इस एक्सेप्शन में आएगा। दूसरा है क्रू मेंबर्स, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए हम 182 डेज वाली कंडीशन देखते हैं। तीसरा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया फॉर विजिट। इसका क्या मतलब है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हु आर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब है कि ईदर एसएससी, ग्रैंड पेरेंट्स, फादर ऑफ द एसएससी या पेरेंट्स ऑफ द एसएससी और ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ द एसएससी आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ग्रैंडफादर्स की बात अगर हमने की तो ईदर मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर्स। सो इफ एसएससी, ईदर एसएससी or parents of the SSC or grandparents of the SSC are born in undivided India, in that case that SSC will be called person of Indian origin। ठीक है, तो अगर 1947 से पहले वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, या उस एसएससी खुद या एसएससी के पेरेंट्स या एसएससी के ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी या दादा दादी, तो इन दैट केस वो एसएससी इंडियन ओरिजिन का है। और ऐसा कोई एसएससी अगर इंडिया विजिट पर आता है तो उस केस में भी हम 182 डेज वाली कंडीशन को ही देखेंगे फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। अब हम आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। तो इसमें पहला है दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें भी दो सेम केस है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो रेजिडेंट होगी या तो नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल के केस में अगर रेजिडेंट होगी तो उस केस में भी या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी तो या तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। अगर नॉन रेजिडेंट है तो फर्दर उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है, लेकिन अगर रेजिडेंट है तो उसमें भी फर्दर वो ओआर होगा या एनओआर होगा। ठीक है, तो पहला केस है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया, होली और पार्शियली इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया, इन दैट केस
the Hindu undivided family is called resident in India. If control and management is situated wholly outside India, in that case that Hindu undivided family is non-resident in India. अच्छा, यहाँ पे I am talking about control and management. तो control and management का मतलब क्या है कि control and management means whether the central controlling power or central directing power is situated. हम ये देखेंगे, ये नहीं कि डे टू डे ऑपरेशन या जो है उसके मेंबर्स हैं वो कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है बिजनेस का, या वो कहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं. नहीं, बिजनेस ऑपरेशन हमको नहीं देखना. हो सकता है बिजनेस ऑपरेशन तो इंडिया में ही हो रहा है, लेकिन वो जो ऑपरेशन कंट्रोल हो रहा है, जो डिसीजन टेकिंग पावर है, वो आउटसाइड इंडिया है. जनरली जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो हेड के पास होती है, और हेड कौन होता है? कर्ता होता है. बट इट्स नॉट नेसेसरी. हो सकता है कर्ता तो करता है, लेकिन हेड तो करता ही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर कोई और है उसके पीछे जो डिसीजन लेता है. तो जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर है, अगर डिसीजन इज टेकन इन इंडिया, इन दैट केस दैट इज रेजिडेंट इन इंडिया, wholly or partially. If the decision is taken from outside India, wholly outside India, in that case the control and management is situated wholly outside India and the Hindu undivided family is non-resident in India. अच्छा, if Hindu undivided family is resident in India, अगर resident है तो further वो या तो ordinary resident होगी या तो not ordinary resident होगी. तो उसके लिए further हमको चेक करना है क्या? further उसके लिए हमको चेक करना है कर्ता की क्या कंडीशन है, कर्ता की रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है. वी हैव टू सी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता. तो कर्ता इज ट्रीटेड एज इंडिविजुअल, कर्ता को हम इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके लिए हम देखेंगे वेदर द कर्ता इज फुलफिलिंग दोज टू कंडीशंस विच आर गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 की कंडीशन क्या है? दैट the karta should be resident in India for at least 2 years out of 10 years immediately preceding the previous year, and the karta should be physically present in India for at least 730 days out of 7 years immediately preceding the previous year. So it means that अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट इन इंडिया है तो फर्दर उसको ओआर और एनओआर देखने के लिए हम कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे. इफ कर्ता इज फुलफिलिंग बोथ दीज टू कंडीशंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, in that case Hindu undivided family is ordinary resident in India. अगर कर्ता इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है या दोनों ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, in that case Hindu undivided family is not ordinary resident in India. So I hope अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी क्लियर हो गया होगा. अब आता है फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस. फर्म्स के केस में या तो वो रेजिडेंट होगा या तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट होगा. इसमें ओआर एनओआर का कोई केस नहीं है. फर्म्स के केस में क्या है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिंपली कि अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया, होली और पार्शियली इन इंडिया, इन दैट केस फर्म्स आर रेजिडेंट इन इंडिया. इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, पूरी तरह से इंडिया के बाहर सिचुएटेड है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सो इन दैट केस दैट फर्म विल बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया. इसी तरह से कंपनी का भी है. कंपनी का इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3. तो कंपनी के केस में क्या है? कंपनी इस केस में भी या तो रेजिडेंट होगी या तो नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट होगी. इसमें भी ओआर एनओआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपली या तो रेजिडेंट है या तो नॉन रेजिडेंट है. अच्छा, अ कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ दैट इज इंडियन कंपनी, दैट इज इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? दैट इंडियन कंपनी मीन्स द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. कोई भी कंपनी अगर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, उसका बिजनेस ऑपरेशन कहीं पर भी है बट वो इंडियन कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है? वो रेजिडेंट इन इंडिया है. ठीक है. दूसरा, फॉरेन कंपनी can be resident in India if principle of effective management is situated wholly in India. यहाँ पे partially का केस नहीं है, mind it. वहां पर था wholly और partially, लेकिन यहाँ के केस में क्या है? wholly in India. Place of effective management is situated wholly in India. तो फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट इन इंडिया हो सकती है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो
सिचुएटेड इन इंडिया है। अच्छा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है, अगर सारी की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इंडिया में हो रही हैं तो इट मीन्स दैट चार के चारों मीटिंग साल भर में 4 बीओडी मीटिंग होती हैं। अगर 4 के चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग इंडिया में हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में सिचुएटेड है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, इंडिया है, तो दैट फॉरेन कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। लेकिन अगर उसका एक मीटिंग भी अगर बाहर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्शियली सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ पर पार्शियली का केस नहीं है, यहाँ पर होली का केस है। तो अगर होली इन इंडिया सिचुएटेड होली इन इंडिया है देन ओनली दैट विल बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज दैट कंपनी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सो दिस इज ऑल फॉर योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट पे फोन कर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट to solve your problems. Thank you.